Hello everyone, welcome to NCRT with Pre. Today we are going to do chapter number 2 of class 7 maths, which is arithmetic expressions. Let's begin our chapter. जो सबसे पहला टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज सिंपल एक्सप्रेशंस। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि सिंपल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैं कुछ अभी एक्सप्रेशंस लिखूंगी, दोज आर सिंपल एक्सप्रेशंस बेसिकली। So look carefully and write with me, make notes. First one is 13 plus 2 and then 20 minus 4. Similarly, I can write 5 into 4 and division ke liye we can write 8 divided by 2. So these are four expressions that I have written here. Arithmetic expressions and simple expressions. Simple, why? Because they are simple, they are not complex, they are having only two terms. That is why we are calling them simple expressions. You have to write, these are called arithmetic expressions. So arithmetic expressions क्या होते हैं? जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं जिनमें कि नंबर्स हैं एंड कुछ साइंस हैं. देयर आर 4 साइंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड देयर आर नंबर्स रिटन. सो इसको सॉल्व करके हमारी कुछ वैल्यू आएगी. दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एज यू कैन सी हियर. व्हाट इज दिस? So note down, is a equal to sign. What it is used for? It is used to show equal values. As we all know that it is used to show equal values. So in case of arithmetic expressions, for example, let me take this expression which is 13 plus 2. इसको सॉल्व करके हमारी एक वैल्यू आएगी which is 15. तो ये जो वैल्यू है, what is this? This is the value. And what is this? This is the arithmetic expression. तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को लिखने के लिए हम इक्वल टू साइन का यूज कर रहे हैं. So this is the arithmetic expression, this is its value. अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को लिखने के लिए हम बीच में इक्वल टू साइन लगाते हैं. एंड इक्वल टू साइन क्या दिखाता है कि ये जो हमारा LHS है और ये जो RHS है, RHS सिंपली मीन्स राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इक्वल टू के, एंड LHS सिंपली मीन्स जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर हैं. ओके, सो इसके लिए हम एक फैक्ट जो आपकी बुक में लिखा है उसे हम नोट डाउन करेंगे. इक्वालिटी साइन. इक्वालिटी साइन मीन्स दिस इक्वल टू denotes means it shows the relationship between the arithmetic expression and its value. So ये जो इक्वल टू साइन है ये रिलेशनशिप डिनोट कर रहा है बिटवीन द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू. So these are the keywords. And then there is one more topic that I want कि हम इसको recap करें. So this is a recap of what you have studied in previous classes. There are these 4 basic symbols or signs we have studied, and this one is for addition, this one is for subtraction, this one for multiplication, and this one is for division. So in terms से associated कुछ terms हैं जो आप बार बार मैथ्स में देखेंगे, and you must know them. That for addition we use sum. For subtraction means दो नंबर को subtract करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं. ऐसे ही दो नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वी कॉल इट सम. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वी कॉल इट प्रोडक्ट. एंड दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट. Let's do some examples of this. Like if I write sum of 3 and 5, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 3 plus 5 which is 8. If I write difference of 3 and 5, तो इसका क्या मतलब होगा?
5 minus 3 which is equals to 2 मीन्स हमें डिफरेंस निकालना है 3 और 5 के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है. एंड हाउ डू वी डू इट with subtraction. And then if I am asked to calculate the product of 3 and 5, that means 3 into 5 और 5 into 3 which both are equal to 15. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. To find the quotient of 3 and 5, how do I do it? I do it by dividing 5 by 3, which I can also write like this, which means if you solve it like this here, 3 ones are 3, 2, 3 6 are 18, and then this keeps on repeating. So the answer is 1.67. So this is a little recap. Next topic which we are going to put our focus on is these three symbols. So this one is the equal to symbol, this one is the greater than sign, and this one is the less than sign. We have used them for numbers. numbers के लिए हमने इन्हें कैसे यूज़ किया है, जैसे कि इक्वल टू के लिए हमने कैसे यूज़ किया है, 3 इज इक्वल टू 3 और एनी नंबर लाइक 15 इज इक्वल टू 15. ओके. ग्रेटर देन के लिए 13 इज ग्रेटर देन 12, लेस देन के लिए 2 इज लेस देन 5. ओके. सो जैसे हम इनको नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, सिमिलरली वी कैन यूज़ इट फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. So you have to note down this point that these signs can be used to compare expressions. Which expressions we are talking about here? Arithmetic expressions. और किसके basis पे? Based on their वैल्यूज़. किसकी वैल्यूज़? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ के बेसिस पे हम उनको क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर देम. ओके, बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ एग्जाम्पल हियर, इफ आई राइट, जैसे कि हमने पहले जिस तरीके का लिया था, विल टेक वन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक विच इज़ 13 + 2, एंड लेट मी टेक वन मोर विच इज़ 20 - 4. सो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम अभी कंपेयर करने वाले हैं. सो फॉर दैट वी फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू. इन दोनों को सॉल्व करके आएगा 13 + 2 विच इज़ 15, एंड देन इन दोनों को विच विल कम 16. 16 + 4 इज 20, सो द आंसर विल बी 16. एंड इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, विच इज़ 16. सो between these two expressions, this expression will be greater. It is that easy. If you are given any two expressions, you have to find the value and then you have to compare them. Okay, let us practice some more questions on this. So now students, we are practicing comparing arithmetic expressions, which is to be honest a very easy topic because हमें इसमें वैसे ही कंपेयर करना होता है जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स में कर रहे थे. सो लेट अस टेक नंबर 1 विच इज़ 10 + 2, एंड आप इनका आंसर वीडियो को पॉज करके पहले ही सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन यू कैन चेक योर आंसर. दिस वे यू विल लर्न बेटर. नाउ लेट अस सॉल्व द आंसर. 10 + 2, let us write it here. 10 + 2 will be 12, and 7 + 1 will be 8, so this will be greater, so the answer will be this one. 13 - 2 is 11, and 4 × 3 is 12, so this one is greater, so the answer is this one. In this, 213 - 13 will be 200, and 213 - 12 will be 201, so this one is greater, so the answer will be this. So as you can see, it is very easy. Now there are some questions that I want to give you for homework. So the first one is 213 - 77. You have to compare it with 214 - 76. Second one is 124 + 245. You have to compare it with 129 + 245. These are homework questions. Note them down and move forward. So now students, we have completed the topic simple expressions. अब हम इसका figure it out solve करेंगे one by one. So let's start. So first is question number 1.
So yes, let's start solving these questions. To first add these two numbers. इन दोनों numbers को add करके हमारे पास क्या आएगा? It will be 17. अब हमें ये figure it out करना है कि हम 17 कैसे लाएं इस नंबर में 6 को ऐड करके, यानी कि हम 6 में कौन सा नंबर ऐड करें कि 17 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 17 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो it will come 11. So the answer will be 11. Question number 2. In this question we will first solve this side because इस side में एक value हमारे पास नहीं है. So it is better that we solve this side first and then find out this value. So let us do 64 divided by 2 will be 2 3s are 6, 2 2s are 4. The answer will come 32. So now we have to figure out कि 8 में हम कितना multiply करेंगे कि the answer will come 32. So how will we do it? We will divide 32 by 8. 8 4s is 32. So we'll write the answer 4 here. So here the answer will be 4. If anybody doesn't knows कि ये कैसे होता है, how do we divide like this, then I will make a separate video on this. या फिर अगर आप भूल गए हैं पिछली क्लास का, you can find the link of the video in the description and revise this concept and practice it with me. So now let us move to the next question. The next question is this one. In this one also we will first solve this side. So इसका आंसर आएगा यहाँ पे 30 and here now we have to figure out कि 22 में कितना प्लस किया जाए कि 30 आ जाए. तो उसके लिए हम कैसे फिगर इट आउट करेंगे, 30 में से हम माइनस कर देंगे 22 को और इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 8. सो द आंसर हियर विल बी 8. ऑल्सो you can check these answers if they are correct or not. Like 13 plus 4 is 17. 11 plus 6 is also 17. So 17 will be equal to 17. It is correct. 8 4s are 32 and 64 divided by 2 is also 32. So both are equal. Then 22 plus 8 is 30 and 5 6 is also 30. So both are equal. इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही आ रहा है. Now let us do this one. Here we have to figure out कि 34 में से कितना माइनस किया जाए कि 25 आ जाए. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? We will simply subtract 25 from 34 and the answer will come 9. So if we subtract 9 from 34, the answer will be 25. Okay, we can check this. 34 minus 9, you can do here, it will come 25. So that's all for this question. Now let us move to the next question. We have to arrange given expressions. जो हमें expressions दिए गए हैं उन्हें हमें ascending order में arrange करना है. So what are the expressions? First let us write all the expressions. A में हमें दिया गया है 67 minus 19. Then B we are given 35 plus 25. Then C we are given 120 divided by 3. Like this we will write all the expressions. इसको माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा 48 and here the answer will be 60. Here the answer will be 40. Here the answer will be 47. Here the answer will be 55. Now to arrange the expressions in ascending order, first we have to arrange these numbers in ascending order. So ascending order में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा is this one, then second this one, no sorry, सबसे छोटा is this one, second is this one, third is this one, and fourth is this one, and last is this one. Let's write सबसे पहले 40, then उससे बड़ा 47, 47 से बड़ा 48, 48 से बड़ा 55, 55 से बड़ा 60. That is all. Similarly, we will arrange the expressions also. So 41 expression है this one, which is 120 divided by 3. इससे बड़ा हमारे पास है 47 वाला expression, which is 67 minus 20. इससे बड़ा हमारे पास है 48 वाला, which is 67 minus 19. इससे बड़ा है 55 वाला, which is 5 into 11. And सबसे बड़ा हमारे पास जो expression है वो है 35 plus 25. So this is the answer. And in this format only you have to give your answer. So here our figure it out exercise is done. Now we will do one more topic. So students, the next topic that we are going to do is how to compare expressions without solving.
सो वी विल डू एग्जाम्पल 2 एंड 3 ऑफ द बुक. सो एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया हुआ है, देर इज़ अ बॉय राजा एंड देर इज़ अ बॉय जॉय. तो राजा के पास कुछ मार्बल्स हैं एंड जॉय के पास कुछ मार्बल्स हैं. एक्सप्रेशन में ये है कि यहाँ पे 123 प्लस 125 है और यहाँ पे 122 प्लस 128 है. तो अब हमें इन्हें बिना सॉल्व करे ये आंसर्स पता करने हैं. सो फॉर नाउ यू जस्ट रिमूव दिस आंसर्स. ओके, लुक एट इट केयरफुली. क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? येस, वी कैन सी दैट हेयर इट इज़ 1022 एंड हेयर इट इज़ 1023. ओके, सो 1023 को हम 1022 प्लस 1 लिख सकते हैं. सो विल राइट इट. और यहाँ पे देखिए 125 एंड इट इज़ 128. तो यहाँ पे तो ये 125 ही रहेगा, बट यहाँ पे वी कैन राइट इट लाइक 125 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 टाइम्स वी कैन डू द प्लस 1. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट दिस लाइन. यहाँ पे 1022 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 1 है. तो बड़ा कौन सा वाला साइड है? ये वाला. इसीलिए इन दोनों एक्सप्रेशंस में ये वाला एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ा है. ओके, ये तो हो गया एडिशन वाला केस, जब यहाँ पे बीच में एडिशन है. अब हम एक सब्ट्रैक्शन वाला केस देखेंगे. सो दिस इज राजा साइड एंड दिस इज जॉय साइड, एंड यहाँ पे एक्सप्रेशंस के बीच में जो साइन यूज किया गया है वो सब्ट्रैक्शन है. सो लुक एट दिस. ये क्या है? 112 माइनस 124, एंड यहाँ पे क्या है? 112 प्लस 1 में से हम 24 माइनस कर देते हैं और यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, अभी के लिए आप ये इसको भूल जाइए कि 24 इज 25 इज 24 प्लस 1. ओके, जस्ट राइट 24. हम ऐसे माइनस कर रहे हैं 24 को, इसमें से माइनस करें 24 को. तो आप देखो 112 में से 24 को माइनस करके जो आंसर आएगा, एक आंसर आया. ओके, एंड 112 प्लस 1 मतलब यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा है, तो उसको करके जो माइनस करके आंसर आएगा उसमें एक नंबर ज़्यादा होगा. मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उससे ये वाला आंसर एक नंबर ज़्यादा होगा. ओके, बट अब यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे 24 माइनस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 25 माइनस कर रहे हैं. मीन्स अगर यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा है तो हम माइनस भी एक नंबर ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पे जो एक नंबर ज़्यादा आना था वो कैंसिल हो जाएगा इसके 1 से, एंड फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे. ओके, so look at this side. I can also explain it that in a different way, that why is it happening. जैसे मान लो ये 113 है, तो 113 को आप 112 प्लस 1 लिख सकते हो, और इसमें से आपने माइनस करना है 24 प्लस 1 को. यानी कि आप ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें से 24 को भी माइनस करोगे और 1 को भी माइनस करोगे, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस 1 और माइनस 1. यानी कि आप पहले आप एक जोड़ो और फिर उसमें से एक घटाओ. सो इट विल बी इक्वल टू कि आपने कोई भी चेंज नहीं किया है. ओके, then it will become 112 minus 24, and here also it is 112 minus 24. That is why these become equal. So that is all, and now we will practice some questions on this concept. So ये जो राजा और जॉय वाला कॉन्सेप्ट है इसके लिए एक डायग्राम बना हुआ है. अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट एग्जाम्पल नंबर 2. तो राजा के लिए यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिया गया था 123 प्लस 125, और जॉय के लिए हमें एक्सप्रेशन दिया गया था 1022 प्लस 128. तो इसके लिए बुक में कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया गया है. पहले यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे है, इस तरीके से कुछ है. तो यहाँ पे 1022 प्लस 1 किसको लिखा गया है? इसको लिखा गया है, और ये 125 है, ये मतलब इनको ऐड करके ये पूरा हमारे पास मिल रहा है. इस एक्सप्रेशन को ऐसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं. ओके, दिस इज व्हाट यू आर विजुअलाइजिंग. ओके, एंड जॉय के लिए क्या है? यहाँ पे 1022 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे जो 125 है इसमें 1s हैं 3. यही तो हो गया 125 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 128. ओके, सो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो और इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे इमेजिन कर सकते हो. तो अब देखो ज़्यादा चीज़ें किसमें है, ये है इसमें, इसमें भी है, ये इसमें है, इसमें भी है, ये इसमें भी है, पर इसमें ये जो दो है ये हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा है. तो इसलिए हमारा बड़ा वाला कौन सा होगा? ये साइड हमारी क्या होगी? बड़ी होगी. तो इन दोनों एक्सप्रेशन में बड़ा कौन सा एक्सप्रेशन होगा? ये वाला, जॉय वाला. ओके, सो दिस इज हाउ यू विजुअलाइज इट. तो राजा के साइड में हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया है 113 माइनस 25, और जॉय के साइड में दिया गया है 112 माइनस 24. ओके, सो इसके लिए हम डायग्राम्स देखते हैं. डायग्राम में हमारे पास दिया गया है कि ये जो 113 है, और यहाँ पे भी हम पैरेलल इसका भी बनाते जाते हैं. ठीक है, ये 112 है, तो इसको हम लिखेंगे 112 और यहाँ पे एक 1 आएगा, ये 113 हो गया. अब इसमें से हमें कितना पोर्शन हटाना है? हमने इसमें से हटाना है 25, मतलब यहाँ तक का जितना भी है ये हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं. ओके, इस पोर्शन को ऐसे मान लो कि हटा रहे हैं. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे को हमने क्या करना है? 24 को हटाना है. ओके, पर अगर हम बुक में देखेंगे तो बुक में वो 25 को नहीं हटा रहे हैं. आपकी बुक में इनफैक्ट ये बना भी नहीं हुआ है नीचे वाला, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से बना हुआ है. यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे से हम 24 को हटा देंगे, मतलब इतना पोर्शन ऐसे करके एरो बना हुआ है. इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक चलो हम हटा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया था, यहाँ पे हटा रहे हैं बोल रहा है, और यहाँ से भी हम 24 हटा रहे हैं. तो मैं भी ये कह रही हूँ कि आप कैसे भी कर लीजिए, ऐसे सोच लीजिए, ऐसे सोच लीजिए. ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे व्हाट वी आर डूइंग. हम इसमें से 25 हटा रहे हैं, इसमें से हम 24 हटा रहे हैं. तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं कि इसमें से हमने इतना पोर्शन क्या कर दिया, कट करके ये सारा का सारा रिमूव कर दिया, तो हमारे पास इतना बच गया.
ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो कि यहाँ पे तक 24 है और ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे 24 है और ये 1 है, तो 25 बन रहा है। देखो 24 रिमूव करने में इतना जा रहा है और 25 पूरा रिमूव करने में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन भी जा रहा है, तो है 25 को रिमूव कर रहे हैं, मतलब इस एक्स्ट्रा पोर्शन के साथ रिमूव कर रहे हैं, तो उतना ही ये जो 1 है ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये और ये पोर्शन फिर क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस. So, what is the question? We have to compare the expressions. The question is compare the given expressions. Book में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, but इस question का मतलब यही बन रहा है what I am writing here. Okay? Compare the given expressions without solving. अभी जो हमने इससे पहले देखा था कि बिना solve किए हमें इन expressions को compare करना है. So first I will quickly write the expressions here. Students, so I have written the expressions here. Now let's start solving them without solving of course. इसका हम आंसर निकालेंगे. जैसे अब हम पहले को देखेंगे, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 85, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है. ओके, 89 माइनस 85 विल बी 4 एक्स्ट्रा है, तो ज़्यादा कहाँ पे है, इट इज़ to this side, so this one is bigger. Okay, let us do addition. पहले हम addition वाली quickly कर लेते हैं. Okay, यहाँ पे 363 से 1 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने एक्स्ट्रा है, 87 माइनस 9 विल बी 7893, तो कहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, so this one will be bigger. Okay, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, 5 प्लस 4 इज 9, और यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वल है, तो ऑफ कोर्स दिस वन इज ग्रेटर. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द सब्ट्रैक्शन वंस. सब्ट्रैक्शंस में क्या है कि देखो सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही नंबर्स, ये देखो 273 से 272 छोटा है और 145 से 144 छोटा है, तो लेट अस फर्स्ट फोकस हियर. ठीक है, तो 272 में से 144 माइनस किया जा रहा है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है. 273 को आप 272 प्लस 1 लिख सकते हो और 145 को 144 प्लस 1 लिख सकते हो, यानी कि इसमें भी ऐसा ही बन रहा है. देखो ये जो 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है वो यहाँ पे माइनस में भी है, यानी कि ये एक एक से तो एक 1 कट जाएगा. ओके, तो जितना यहाँ पे प्लस हो रहा था उतना माइनस में हट भी चुका है, तो अब ये सेम एक्सप्रेशन बन गई है कि 272 माइनस 144, तो ये इक्वल है. इस क्वेश्चन 213 और 214 में 214 बड़ा है और यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा है. 77 और 76 में 77 बड़ा है, यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा है. तो अब हम इसको कैसे सोचेंगे, देखो आप 213 में से ऐसा मान लो कि 76 ही माइनस कर रहे हो. ओके, 213 माइनस 76 कर रहे हो, लेकिन फिर बाद में आपका जो भी आंसर आ रहा है उसमें से आप ये आंसर में से एक 1 और माइनस कर रहे हो. ठीक है, ये आपकी जो 214 है, 213 प्लस 1 है और इसमें से आप 76 माइनस कर रहे हो, यानी कि आपका इसमें क्या हुआ था, सिर्फ 213 में से 76 माइनस हुआ था. तो हम यहाँ पे यही पहले यही इमेजिन कर रहे थे कि 21 ये जो है 213 में से आपने 76 माइनस किया तो एक आंसर आ रहा है. ठीक है, प्लस ये पर यहाँ पे एक प्लस 1 है, जैसे कि आप ऐसे देखो 5 माइनस 3 करोगे और 4 माइनस 3 करोगे तो यहाँ पे को क्या है 2 आएगा और यहाँ पे को 1 आएगा, तो जिसमें प्लस 1 है उसका आंसर वैसे भी ग्रेटर रहेगा, और कितना ग्रेटर रहेगा, 1 से ही ग्रेटर रहेगा, तो आंसर में एक ज़्यादा रहेगा. 213 माइनस 76 से इस आंसर में एक ज़्यादा रहेगा. ओके, सो दैट इज इट. बट यहाँ पे देखो आंसर में एक ज़्यादा हो रहा है और इसमें यहाँ पे आंसर से और कम हो रहा है. गेटिंग, सो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. यू कैन ऑल्सो सॉल्व एंड चेक दिस. इसको माइनस करके हमारे पास कितना आना है, इतना आना है, और इसको माइनस करके हमारे पास कितना आना है, इतना आना है. So which one is bigger? The bigger one is this one. Okay. If you are not getting this, let me recap this one again. हमने क्या किया है कि 213 में से 77 को, या फिर हम कहें कि सिर्फ 76 को माइनस किया और उसमें से फिर एक कम कर दिया. जो भी आंसर आया 213 में से 76 को माइनस करके कुछ आंसर आया और उस आंसर में से फिर हमने एक नंबर और घटा दिया, और यहाँ पे 213 में से 76 को हमने माइनस किया और उसमें एक नंबर और प्लस कर दिया. ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है. So I hope you enjoyed this video. I suggest you to make notes with me, that will be more helpful to you. और कुछ दिनों बाद please solve it again ताकि आप concepts को भूलो ना. Revision is very important. And that's all for the video. Thank you for watching the video. And in the next video, the topic we will be covering is reading and evaluating complex expressions. Stay tuned. Thank you for watching the video.